I welcome you all to the Youth Revolution. I'm Nishita Sharma, your host for today, and I will be starting an exclusive series called Mastering Manhood. We have Raj with us. He's an accomplished author, and he has dedicated himself in helping young men. In this series, we are collaborating with him, and we will be talking about different interesting topics which will help you grow. So we are glad to have you here. And so, what inspired you to write a book about young man? Okay, so firstly, thank you so much to have me here. Before 2 years ago, I started observing men, how they dress, how they communicate, how they talk with their parents, and how they treat everyone. The inspiration which I got to write books was because of how modern men are perceived. आपने सुना होगा, there are good boys, bad boys, boys who address themselves as masculine, boys who oppose them, that no, this is toxic masculinity, this that. तो ये जो confusion है पूरा कि how a man should be, तो I thought that and I observed कि they don't know how to dress, they don't know how to talk, a lot of men, and that is what inspired me to write a book on modern men. When I observed, I came out with an observation कि ये सब जो चीज़ें है, the main reason for it कि जो influence है, जो surroundings है, they are very different, और ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोग confuse हो गए कि क्या सही है क्या गलत है. जो influence मिल रहा है हम लोगों को, either it can be social media or it can be our friends or the surroundings. I'll give you an example कि आपने देखा होगा stand up comedy that is very trendy nowadays. Yes. तो वो हम लोग वो consume कर रहे हैं. I'll not take the names. We all know कि stand up comedy के नाम पे body shaming या फिर गाली देना, तो ये हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और ये हम लोग को मिल रहा है क्योंकि हम लोग को चाहिए, हम लोग देख रहे हैं व्यूज, इतने सारे व्यूज मिल रहे. कौन है वो? सारे लड़के, यूथ है कि जो ये सारी चीजें देख रहा है एंड दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड. तो आई थॉट अबाउट इट और फिर मैंने सोचा कि ओके, आई रियली वांट टू हेल्प देम और राइटिंग अ बुक कि हाँ इस बारे में बुक लिखूँ, वो मेरे को थोड़ा अच्छा साउंड कर कि हाँ इस बारे में अगर मैं लिखूँगा तो दे विल कम टू नो, और उनको एक गाइडेंस मिलेगा, उनको एक पाथ मिलेगा कि क्या करना चाहिए, what is wrong, what is right, and that is when I thought to write the book on modern men. So, what are the most common mistakes a young man makes, and what have you observed about them? Okay, so according to my observation, the most common mistake a lot of men are making nowadays is that they think that they know everything. Yeah, I कि agree. मुझे सब पता है Yeah. और मैं जो कर रहा हूँ वही सही है. The other thing is that कि अगर कोई जाके उनको गाइड कर रहा है कि this is how you should do it और ये जो आप कर रहे हो वो गलत है, तो they start to defend it. वो लोग ऐसा सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये चीज इसी हिसाब से होनी चाहिए. Yeah, they are very particular. Yeah, they are very particular about their mindset, their rigid mindset. So this is the first mistake. The second mistake I observed is the YOLO mindset of this youth, the you only live once mindset. Yeah, right. कि एक ही लाइफ है, सब कर लेना है, सब ट्राई तो करता है नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स. सब चीज़ें ट्राई करने के लिए नहीं भाई, यू शुड नो कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है. Yeah. अभी लग सकता है कि ओके इट्स कूल लग जाऊंगा मैं या कूल लग जाऊंगी मैं, बट फ्यूचर में इसके क्या क्या हार्म्स हो सकता है वो हम लोग नहीं सोचते हैं, और हम लोग जो सब लोग कर रहे हैं वही करने में जुट जा रहे हैं कि हाँ ठीक है सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. एंड द थर्ड मिस्टेक आई ऑब्जर्व इज दैट द लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन देयर पेरेंट्स. कि उनके खुद के पेरेंट्स उनको जब बोल रहे हैं कि ये जो तू कर रहा है वो सही है, ये जो तू कर रहा है वो गलत है, तो उनको उन पे ट्रस्ट नहीं है. वो सोचते हैं कि नहीं, हाँ वो लोग ऐसे सोचता है कि नहीं आप लोगों को तो क्या ही पता चलेगा. So these are the three common mistakes I have observed in the
modern youth. So what are the steps that a young man can take to rectify these mistakes? So the first step a young man should take, all of your audiences, all of the young men, the first step they should take is to improve the mindset, और एक ऐसा mindset बनाए which is open to learning new things. Yeah. नई चीजें सीखने के लिए अपनी गलतियां एक्सेप्ट करे, Yeah. और एक mindset ऐसा बनाए कि okay, I can learn this thing from this person, I can learn this thing from this situation. The other thing is that कि ये जो mindset है it should be positive. कोई भी सिचुएशन आ रहा है, Yeah. कुछ भी हो रहा है, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो होगा सीखने का. ओके, दिस इज व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन, और दिस इज व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक. Yeah. तो एक ऐसा माइंडसेट बनाए विच इज वेरी पॉजिटिव, कि वो लोग कोई भी सिचुएशन आए दे कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. The next step and the very important step they all can take is to know what is in our hands, what is not in our hands. Yeah, yeah. क्या चीज अपने हाथ में और क्या अपने हाथ में नहीं है. तो ये एक ऐसा पूरा माइंडसेट बना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बन रहा है आपका, कि ओके जो भी कुछ हो रहा है आप लोग पॉजिटिवली ले रहे हो. Yeah. एक आपने ऐसा सोचा कि ओके मैं कुछ सीखूंगा इसमें से, और हमें पता है कि क्या हमारे हाथ में और क्या हमारे हाथ में नहीं है. तो ऐसा एक माइंडसेट बनाए. द अदर थिंग इज टू आइडेंटिफाई द डिस्ट्रैक्शंस, कि ये ओके फोन विच इज डिस्ट्रैक्टिंग मी हटा दो, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्टिंग मी हटा दो, कि अभी मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में, ये एक पता होना चाहिए. आई विल गिव अ स्मॉल टिप कि सक्सेस को है ना ऐसे लॉन्ग टर्म में मत देखो. ओके आई बी दिस, आई बिकम दिस, आई बिकम दैट, ऐसे नहीं. सी सक्सेस एंड डिवाइड इट इन स्मॉल पार्ट्स, Yeah. Like स्मॉल short-term डेली goals. विंस. हाँ, Yeah. तो हाँ दे कैन फॉलो द वर्ल्ड ट्रायड. दैट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. What is the word triad? So the world triad is when you are working on three things: your spirit, your mind, and your body. Oh. That are the three pillar of your life: spirit, mind, and body. So the world triad says that कि you should work on your spirit, your mind, as well as your body. Oh. So in the world triad, see, I'll give you an example. If a guy is meditating daily, if he's praying, then he's working on his spirit. Yeah. If a guy is working out, if a guy is playing sports, then he's working on his body. Yeah. And if a guy is reading, if a guy is writing, or if a guy is acquiring any kind of knowledge, then he is working on his mind. ये तीनों चीजें जब साथ में होती है ना, तब बेस बनता है सक्सेस का. Always remember कि a guy who only works on his body will end up working for a guy who only works on his mind. आजकल के बच्चों को क्या है कि हम लोग जिम जा रहे हैं, Yeah. so we are doing something in life, but no, that is a very basic necessity of everyone, just to keep your body fit. Yeah. उसके साथ साथ you have to train your mind, you have to work on your spirit. अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो अंदर से आप शांत हो रहे हो. Yeah. अगर आप प्रेयर कर रहे हो तो एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है कि ओके गॉड इज विद मी. इफ आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी, तो लॉन्ग टर्म तक माई बॉडी विल बी फिट, Yeah. Like healthy. आई लीव अ हेल्दी लाइफ. Yeah. और अगर मैं मेरे माइंड को डेली ट्रेन कर रहा हूँ, मैंने कई बार सुना था कि नॉलेज इज द बेस्ट वेपन अ गाय कैन हैव. तो व्हेन अ गाय इज ट्रेनिंग हिज माइंड एज वेल एज हिज बॉडी एंड हिज स्पिरिट, तब एक बेस बनता है सक्सेस का. Oh. Now I will suggest to every guy watching this that long term मत देखो कि आगे जाके क्या होगा, मेरे हाथ में क्या है, या कोई भी लड़के के हाथ में क्या है आज, द प्रेजेंट, कि आज मैं क्या कर सकता हूँ. तो फॉर्म अ शेड्यूल जिसमें ऐसी एक्टिविटीज है विच आर वर्किंग ऑन योर स्पिरिट, ऐसी एक्टिविटीज है विच आर वर्किंग ऑन योर बॉडी, एंड ऐसी एक्टिविटीज है विच इज हेल्पिंग योर माइंड टू ग्रो. Yeah. ये जब तीनों चीजें एक साथ होती है रोज, कि आप स्पिरिचुअली यू आर वर्किंग, आप अपने बॉडी पे रोज काम कर रहे हो और आप अपने माइंड पे रोज काम कर रहे हो, Yeah. तो एक बेस बनता है सक्सेस का. एंड यू आर अक्वायरिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, यू आर हैविंग अ गुड बॉडी, एंड
यू आर मेडिटेटिंग, तो यू आर पीसफुल फ्रॉम इनसाइड। Yeah. तो आप सोच सकते हो आगे कि क्या करना है, बट अभी हम लोग के हाथों में आज का दिन है कि आज क्या कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन मी कि मैं सुबह उठ रहा हूँ हाँ. और मैं सोच रहा हूँ कि आज मुझे कुछ ऐसे काम करना है जो मेरे स्पिरिट को वर्क करेगा, जो मेरी बॉडी के वर्क Yeah, करेगा body को. और जो मेरे माइंड पे वर्क करेगा। तो आई थिंक कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो आई मेडिटेट, आई प्रे विच विल वर्क ऑन माई स्पिरिट। फिर मैं जिम जाऊँगा और आई प्ले सम स्पोर्ट्स, Yeah. तो दैट विल ट्रेन माई बॉडी। एंड देन आई रीड बुक्स, और अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, आई एम इनटू समथिंग, तो आई अक्वायर नॉलेज Yeah. कि ओके आई हैव लर्नड दिस, आई हैव ट्रेन्ड माई माइंड। Yes. यू कैन इवन प्ले चेस, यू कैन सॉल्व रूबिक्स क्यूब्स। Yeah. तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड को ट्रेन करती है। तो जितना इम्पोर्टेंट अपने बॉडी को ट्रेन करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट अपने ब्रेन को ट्रेन करना भी है। ये आजकल के यूथ को समझना है, क्योंकि जब बच्चा 17-18 का हो रहा है ना आज, तो दे ऑल आर लाइक कि जिम जाना है, Everyone is going gym. या बॉडी बनाए, Yeah. बट उसके साथ साथ वी हैव टू वर्क ऑन आवर माइंड, एंड दैट इज हाउ द वर्ल्ड ट्राइड वर्क्स। सो या So how can one manage their personal relationship while prioritizing their personal growth? ओके, सो दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड Yeah. कि relationships are important in our lives. We all are social beings. Friends, family, partner, we have that. Yeah. We want that and we need that. Yeah. तो उसके साथ साथ as you asked कि how one can focus on self growth as well as relationships. तो इसमें the first thing again the mindset वाला thing, कि जो mindset जो चीज़ का होना चाहिए ना, that is कि आज के मेरे काम क्या है, मेरे को वो काम पहले खत्म करना है, उसके बाद आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर रिलेशनशिप्स। प्रायोरिटीज सेट करनी है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है अभी के टाइम पे, क्या ये रिलेशनशिप्स है या मेरा सेल्फ ग्रोथ है। सी इफ अ मैन इज एजिंग अंडर 18 to 24, तो वहाँ पे उसकी प्रायोरिटी होती है सेल्फ ग्रोथ। अगर कोई लड़का 24 साल का हो गया ना, और अगर वो घर पे बैठा है ना, तो घर से भी ताने आने शुरू हो जाते हैं कि क्या ऐसे ही बैठा है, कुछ कर जाके। सो मेन डोंट हैव ऑप्शन, वी हैव टू अर्न। आपने सुना होगा मेन प्रोवाइड प्रोटेक्ट, Yeah. वी हैव टू प्रोवाइड। और वो हम लोग को अंदर से लगता है कि ओके आई वांट टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली। सभी लड़कों का वो ड्रीम होता है कि मैं मेरे मम्मी पापा को खुश करूं, मैं मेरे मम्मी पापा के ड्रीम्स पूरे करूं। Yeah. तो वो जब अपने दिमाग में होता है ना, तो ऑटोमेटिकली ये सेट हो ही जाता है कि ये मेरी प्रायोरिटी है, ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शेड्यूल बना लिया जिसमें आई एम ट्रेनिंग माई स्पिरिट, आई एम ट्रेनिंग माई बॉडी, आई एम ट्रेनिंग माई माइंड। हाँ. तो अब जब कोई रिलेशनशिप की बारी आएगी कि आई हैव टू गो आउट विथ माई फ्रेंड्स और आई हैव टू गो आउट विथ माई फैमिली, तो आई थिंक कि आज के मेरे सारे काम हो गए हैं। Okay. अगर मेरे सारे काम आज के खत्म हो जा रहे हैं, I worked on my spirit, I worked on my body, I worked on my mind. तीनों sections complete है। फिर you can have time for relationship. Yeah. कि हाँ फिर जाके घूमो ना, कौन मना कर रहा है, just go hang out, just chill, क्योंकि वो भी बहुत important है। Right. But priority ये है कि मुझे मेरे आज के काम खत्म करने हैं, क्योंकि as I said, the only thing we have right now is now, the present. क्यों आज है मेरे पास पूरा दिन, तो I will make this day count. तो अगर मैंने मेरे सारे काम खत्म कर लिए पूरे दिन के, फिर आई कैन गिव टाइम टू रिलेशनशिप, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ. तो एक आपने सुना होगा वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ हाँ. कि ये मेरा काम है, ये मेरी लाइफ है। एक प्राइवेट लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ। Yeah. तो ये मेरी लाइफ है, मुझे ये करना है, आज के दिन में मेरे इतने इतने काम है, वो मुझे खत्म करना है। उसके बाद में आई कैन गिव टाइम टू माई रिलेशनशिप। सो दैट इज हाउ एनीवन कैन मैनेज दैट। So what mindset they should have so that they could enjoy their personal life while also striving their personal growth? So the term you mentioned, enjoy their personal life. Yeah. तो इसमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो enjoyments है, हाँ. ये cost क्या कर रहा है। Oh. If someone is enjoying to smoke, that is costing him his health. Yeah. If someone is enjoying watching Netflix, that is costing him time. If someone is enjoying to hang out with his friends, that is costing him time. Yeah. कि उसका टाइम जा रहा है वहाँ पे, एनर्जी जा रहा है। तो पता होना चाहिए
कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ विच आई एम लाइकिंग, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? हाँ उसके फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो. See, I even hang out with my friends. Yeah. I even chill in my life. I even Yeah. enjoy everything. But I know कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मेरे को फ्यूचर में क्या हार्म्स हो सकता है. आई एम वेल अवेयर अबाउट दैट. अगेन मैं तो बेसिक वर्ल्ड ट्राइड फॉलो करता हूँ और मैं सजेस्ट करूँगा कि यही करें कि एक शेड्यूल बना दे कि मुझे ये करना है, ये सारे तीनों सेक्शंस कवर हो रहे हैं, उसके बाद में आई कैन एंजॉय माई लाइफ. सी फॉर एग्जाम्पल, if I'm working out, so it will take an hour to work out. If I'm reading, it will take 30 minutes to read a book, to read 10 pages, 15 pages. Or if I'm meditating or I'm praying, it will take 30 minutes. तो 2 से 3 घंटे तो रोज खुद को दे सकता है. You have 21 hours left for other things. But जो खुद के लिए है, as we are talking self growth, तो उसके लिए 2 से 3 घंटे मिनिमम एक दिन में निकालने पड़ते हैं. सो ये चीज़ एक होनी चाहिए कि ये जो मेरे एन्जॉयमेंट्स है, ये जो फन है, तो वो फ्यूचर में क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट कर सकता है. टेल मी कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. The way they live. ओके, द वे दे लिव. Yeah. एक ऑर्डिनरी बंदा और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे में वो डिफरेंस होता है कि सब लोग क्या कर रहे हैं. देख, वर्कआउट सब लोग कर रहे हैं, एवरीवन इज वर्किंग ऑन समथिंग. सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन सब लोग को तो वो नहीं मिलता ना जो सबको चाहिए. और जिसको मिल रहा है, व्हाट वाज द डिफरेंस, कि वो जो सारे लोग कर रहे थे ना, द ऑर्डिनरी बंदे, इफ सपोज कि वो लोग फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे थे, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे ने वो सेक्रीफाइस कर दिया था. अगर सब लोग अपना टाइम सीरीज देखने में लगा रहे थे या मूवीज देखने में लगा रहे थे, तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है उसने वो नहीं करा. ही इन्वेस्टेड टाइम इन हिमसेल्फ बिकॉज ही न्यू कि ये पॉइंट ऑफ टाइम जो है मेरा लाइफ में, उसमें क्या इम्पोर्टेंट है. हाँ, तो उसमें उसकी प्रायोरिटी सेट थी कि मुझे अभी ये करना है और आई डू दिस, आई सेक्रीफाइस एवरीथिंग टू अचीव व्हाट आई वांट. And that is the difference between an ordinary guy and extraordinary guy. So what are the few tips you would like to give young men who are watching this podcast which will help them for their life? Okay, so the first tip I would give to all the young men watching this podcast is, guys, just trust your parents because they are the only people जो आपके बारे में genuinely सोचता है. Just trust them. And you know, आजकल पेरेंट्स और चाइल्ड में बैरियर बढ़ गया. दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद देम प्रॉपर्ली. तो आई वुड सजेस्ट कि अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो. जस्ट टेल देम व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ एंड जस्ट ट्रस्ट देयर सजेशंस. सो दिस इज द फर्स्ट टिप आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल. द सेकेंड टिप आई वुड लाइक टू गिव ऑल ऑफ देम is that quit all of your addictions right now. If you are listening this, just take it seriously and know what the addictions are costing you. If you have an addiction of smoking, it is costing you your health. If you have an addiction of screen, it is costing you your time. तो identify क्या क्या addictions है मुझे और कौन सी चीज़ें है जो which is stopping me to do all the things which we discussed earlier. अगर आपको लगता है कि you are spending a lot of time with your friends, तो it is even an addiction not to be lonely. You need someone all the time. तो addictions को अभी quit करो. This is the second tip I would like to give you all. And the third and the most important tip I would like to give you all is that have immense trust on God. जिस भी भगवान में आप मानते हो, you should have immense trust कि कुछ भी हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे भरोसा है कि the God, you, I am addressing God as you are gonna do everything according to me, और जो मेरे लिए अच्छा होगा you will do that and you will help me do that. अगर मेरे पास कोई है कि नहीं है, but I have you with me. So have immense trust on God. These are the 3 tips I would like to give you. Just follow these tips and just start your self growth journey. Thank you for your valuable tips and time.
We are looking forward to talk about such interesting topics again on this series. Thank you. Thank you everyone for your valuable time. The links of his books will be in the description box below. Please share this video with your friends to help them out, and please subscribe to the channel to keep up with the series. Thank you.